Welcome to all. Welcome to all in my channel Ishan Study Adda. Today we are going to discuss about the next topic, that's basis. In basis we discuss about what is base, types of bases, in which we study our strong base, weak base, and monoacidic base, diacidic base, and triacidic base. So now we move to our whiteboard. So now what is the meaning of base here? If we talk about the simple definition, what we have learned about bases. So bases are those when dissolve in water or in aqueous solution produces hydroxyl ion. Hydroxyl, that is OH minus ions of hydroxide ion. That is also OH minus ion. Now next, what is added in it? It may be metallic oxide or metallic हाइड्रोक्साइड. या तो ये मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है, ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है. फॉर एग्जांपल ZnO एक मेटेलिक ऑक्साइड है. ZnOH होल ट्वाइस एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है. सोडियम Na2O एक मेटेलिक ऑक्साइड है. NaOH एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है. Al2O3 एक मेटेलिक ऑक्साइड है. AlOH होल थ्राइस एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है. तो व्हाट आर द बेसिस? Bases are those when dissolved in water produces hydroxyl ion or hydroxide ion. It may be metallic or metallic hydroxide, metallic oxide or metallic hydroxides. या तो ये metallic oxide हो सकता है या metallic hydroxide हो सकता है. Now here is 4 point soluble bases. Soluble bases. What is the meaning of soluble bases? Soluble, which dissolves in water. It dissolves in water or in aqueous solution. Which dissolve in water or in aqueous solution. Soluble bases are called alkalis. These are known as alkalis. इनको हम alkalis बोलते हैं. Then what are bases? Insoluble bases are the part of base. Insoluble bases are the part of bases. Insoluble bases में हमारा soluble bases में और insoluble bases में कौन कौन से पार्ट आएंगे उसको भी अपन डिस्कस करेंगे. For example, बेसिस का एग्जांपल हो गया आपका एक फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस एंड आपका दूसरा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. ये दोनों बेस तो हैं लेकिन इंसोल्यूबल बेस है. इनको हम एल्कली नहीं बोल सकते क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होते. तो एल्कली हमारे क्या हो जाएंगे?
हमारे अल्कली हो जाएंगे आपका NaOH, KOH, NaH, और जो KOH है वो आपके क्या बन जाएंगे, सॉरी कैल्शियम नहीं आएगा, इट इज नॉट अ कैल्शियम, इट इज कॉपर, this is copper hydroxide. Insoluble bases में ferric hydroxide and copper hydroxide. Insoluble bases sodium, potassium and little bit COH होता है। ये वीक एल्कली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा वीक एल्कली है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी हमारा एक वीक एल्कली है। These are to the weak alkalis and these are to the strong alkalis. इनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, NaOH को एंड KOH को। COH होल ट्वाइस और NH4OH को हम बोलेंगे वीक एल्कलीज। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होगी आपको। एक छोटी सी स्लाइड में बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करिए। अच्छा, अब इधर एक चीज और समझ लेते हैं, वीक एल्कली क्या होता है। वीक एल्कली मीन्स डिसोशिएट in both ions and dissociates in both ions and molecule, dissociates in both ions and molecule। and strong alkalis हमारे क्या होंगे, dissociates in ionic form only, dissociates in ionic form only, that means ions। this is an ionic form only, that means ions में dissociation होगा इनका। अब इधर एक नोट और लग जाएगा, कौन सा, PbO2। PbO2 is not a basic oxide। PbO2 हमारा बेसिक ऑक्साइड नहीं होता, इसको हमें लर्न रखना है। लेड ऑक्साइड इज नॉट अ बेसिक ऑक्साइड। रीजन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। lead oxide is not a basic oxide. Why? Let we discuss. साउंड प्रॉब्लम करिए, आवाज आ रही है। हाँ, so we discuss about lead 4 oxide is a metallic oxide। lead 4 oxide एक मेटेलिक ऑक्साइड तो है, नॉट अ बेसिक ऑक्साइड, लेकिन बेसिक ऑक्साइड नहीं है। It is a metallic oxide, but it is not a बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड नहीं है, ये मेटेलिक ऑक्साइड जरूर है। लेड 4 ऑक्साइड का मतलब होता है PbO2। PbO2 हमारा बेसिक ऑक्साइड नहीं है। ऐसा क्यों है, जब हम PbO2 को, यानी PbO2 जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में है, मतलब डाइल्यूट HCl है, तो इट गिव्स, ये हमको क्या देगा, PbCl2 लेड क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में मिलेगा हमको, साथ में क्लोरीन गैस मिलेगी, और साथ में हमको मिलेगा वाटर मिलेगा, 2H2O। सो जो क्लोरीन गैस है यहाँ पे, दिस इज एसिडिक रेडिकल,
ये जो गैस है ये एसिडिक रेडिकल को शो करती है। एसिडिक रेडिकल होने के कारण ये एसिडिक नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर बताता है। विच नेचर को वेरीफाई करेगा? ये आपके एसिडिक नेचर को वेरीफाई करेगा। इसीलिए इसको हम एसिडिक ऑक्साइड तो नहीं, इसको हम एसिडिक तो नहीं बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड भी नहीं है, ये बेसिक ऑक्साइड की क्लासेस में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो गैस फॉर्म हो रही है वो एसिडिक नेचर की है। द गैस फॉर्म इज ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर और कैसे एसिडिक रेडिकल का पार्ट है, इसलिए हम इसको बेसिक ऑक्साइड नहीं मानेंगे। इट इज नॉट बी कंसिडर्ड एज द बेसिक ऑक्साइड। So now we move with the next part. There is a one statement: all alkalis are bases. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. That means सारे एल्कलीज तो बेस होंगे लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी सॉल्युबल बेसिस होते हैं, सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं, और इनसॉल्युबल बेसिस जितने भी हैं हमारे, इनसॉल्युबल बेसिस वो किसका पार्ट है हमारे? वो हमारे बेसिस का पार्ट है। इनसॉल्युबल बेसिस हमारे जितने भी हैं, दे आर द पार्ट ऑफ बेसिस। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। एल्कली दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग एल्कली, एक होता है वीक एल्कली। और एक स्टेटमेंट सारे ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल हैं नेचर में, इनसॉल्युबल इन नेचर एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड अमोनियम। कैल्शियम जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, या सॉल्युबल। जैसे इनके नाम याद करने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कैसे याद रखें? सोडियम माने सोडा, सोडियम माने सोडा, कास्टिक सबको याद है, कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेम आएगा कास्टिक। कास्टिक के बाद जो पोटास, पोटेशियम माने पोटास, तो ये हो गया कास्टिक पोटाश। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलेंगे स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, या फिर इसका दूसरा नाम भी है लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं और लाइम वाटर भी बोलते हैं। फोर्थ आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं NH4OH। ये तो सिंपल है, इसमें ये दो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है और ये दो वीक एल्कलीज है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
अब डिसोसिएशन अब हम करते हैं, डिसोसिएशन तो देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी हम करते हैं इनका डिवीजन। तो एसिडिटी के बेसिस पे हम इसका डिवीजन करेंगे। एसिडिटी का मतलब क्या है? सो एसिडिटी मीन्स द नंबर of hydroxyl ions produced or formed in a reaction, number of hydroxyl ion produced or formed in the reaction, ये एसिडिटी कहलाता है। इसके अंदर in a aqueous solution। सो इनको हम बेसिकली बुक के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस, मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। इसमें सिंगल हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा, इसमें डबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा, इसमें ट्रिपल हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल NaOH gives aqueous solution, इसमें दिया Na plus OH माइनस। तो ये सिंगल मोनोबेसिक एसिड। डाइबेसिक CaOH होल ट्वाइस, ये भी एक्वस है। इसमें गिवन दिया Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे 2 फॉर्म हो रहा है, तो डाइबेसिक हो गया। अब ट्राइबेसिक में हम बात करते हैं AlOH होल थ्राइस, ये भी एक्वस में। सो दिस हैज गिवन Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। सो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल आयन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसलिए ये बनेगा मोनोबेसिक मोनो एसिडिक बेस, ये बनेगा डाई एसिडिक बेस एंड ये बनेगा ट्राई एसिडिक बेस। तो अब इधर एक हमारा पॉइंट है, एक यहाँ पे नोट दिया हुआ, वो क्या कह रहा है, नोट में लिखा हुआ है फॉर वाटर insoluble, for water insoluble hydroxides, water insoluble hydroxide acidity equals to replaceable hydroxide ion of that base। सिंपल कहानी कह रहा है वो, तो कहना ये चाह रहा है जो इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स हैं तो उनकी एसिडिटी कैसे होगी, उनकी जो एसिडिटी होगी वो रिप्लेस, कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो सकते हैं उसके हिसाब से होगी। फॉर एग्जांपल ऊपर ले लें, ये जैसे है हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा डाई एसिडिक बेस। क्यों? कॉपर 2 प्लस 2OH माइनस, मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस, हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस हो सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए इसको हम डाई एसिडिक बेस बनाएंगे, ये ऐसा कहना चाह रहा है। So we discuss about the properties. So now we discuss about the properties, about the basis property, chemical properties of the bases.
reaction on the pH scale. All of the things we had discussed in the next slide or the next lecture. So thank you for watching the lecture and have a good day and all the best for your semester exams.